Hello friends, welcome to CEC Gurukul Lectures. Dear friends, this is our another session on career counseling called Pratibha Samvardhan, and every time we try to talk on different topics related to your careers, because we believe that we are the one who can make positive change in your lives. And as far as today's discussion is concerned, we would like to tell you all that today's topic is very, very interesting. You might have wondered and you might be thinking if there is someone who could tell you how to prepare for the entrance examination. So, dear friends, we would like to tell you all that today for this discussion on the topic we have with us in our studios Mr. Akshay Srivastav. Mr. Akshay Srivastav is a career counselor. Currently, he is working with Jitin Chawla's Center for Career. He is basically an educationist as well as a counselor who gives positive knowledge because he believes in knowledge and wisdom altogether, and he believes in true dissemination of knowledge, and persistently he makes efforts so that yes, he can bring a positive change in your lives. So let's welcome our guest, Mr. Akshay Srivastav. First of all, hello Mr. Akshay, welcome to the lecture. Thanks a lot for having me here. It's actually a wonderful privilege for me to be sitting here and actually discussing different career options with the students. Yes, this is something I have been striving for. Finally, I got an opportunity. So thanks a lot. So before moving towards our current topic of discussion, that is how to prepare for the entrance examination, first of all, I would like to know through you, what are the career options for which one can strive for? So if I actually talk about the career opportunities today, we have a vast variety of opportunities for the students. तो होता क्या है ना, जब स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते हैं तो नॉर्मली उनके दिमाग में चलता है कि जो ग्रेजुएशन में करा है या तो कंटिन्यूएशन में कर लेते हैं, एल्स दे थिंक अबाउट चेंजिंग द स्ट्रीम. सो टुडे आई वुड एक्चुअली वांट यू स्टूडेंट्स टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ऑल ऑप्शंस डू वी हैव. सो यस, एक बहुत ही फेमस ऑप्शन जो काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं, चाहे वो उन्होंने कुछ भी करा हो, चाहे बीटेक करा हो, चाहे बीबीए करा हो, चाहे बैचलर्स इन साइंस करी हो, चाहे कुछ भी करा हो, ज़्यादातर बच्चे जाते हैं एमबीए के तरफ कि हाँ हम लोग एमबीए करेंगे. लेकिन एमबीए में भी बहुत सारी सब कैटेगरीज आ चुकी है आजकल. सो इफ आई टॉक अबाउट एमबीए, एक तो हमारे वो जेनेरिक एमबीए कोर्सेज है विच फॉर मार्केटिंग, विच फॉर ऑपरेशंस, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज. ये चार चीजें ज्यादातर लोग जानते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, वंस अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस. फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत अच्छा ऑप्शन है. बिजनेस एनालिटिक्स, अ वेरी फ्यूचर एंड एन अपकमिंग ऑप्शन. एमबीए विद बिजनेस एनालिटिक्स बहुत अच्छा चलने वाले आगे, एंड बहुत ज्यादा डिमांड भी होने वाली है इस चीज की. काफी सारे स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज के तरफ इंक्लाइंड होते हैं. लाइक देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स का या फैमिली में किसी का प्रॉपर्टी ओरिएंटेड बिजनेस होता है एंड दे माइट वांट टू जॉइन द फैमिली बिजनेस. अब अगर आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो तो नया क्या लेकर आओगे? उसके लिए भी देयर आर कोर्सेज विच आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू रियल एस्टेट. We can look at that as well. We can look at something like international relations. We can look at something like MBA in fintech, which is basically a combination of finance and technology. Now, once again, technology जो है ना आगे फ्यूचर में एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है. So we should be inclined towards technology along with anything that we are doing right now. So be it fintech, be it business analytics, दोनों में हम लोग एक्चुअल में एक जगह मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करें, एक जगह फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करें. सो दीज आर वेरी गुड करियर ऑप्शंस फॉर अस. इसके अलावा भी इफ आई एक्चुअली गो इन अ डायरेक्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द जेनेरिक एमबीए ऑप्शंस, वी कैन लुक एट लॉ. कई बार स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैं 12th के बाद ही लॉ कर लेता हूँ, बट दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. सो व्हाट दे कैन डू इज, इफ दे हैव डन अ ग्रेजुएशन, दे कैन स्टिल कंबाइन इट विद लॉ. They can combine law with BTech and they can get into the IT industry. वहाँ की legalities handle कर सकते हैं. They can combine BSc and law. इससे ये science oriented जो हमारी companies है वहाँ पे ये legal चीज़ों को handle कर सकते हैं. They can combine BCom and law. उससे ये finance और law को combine कर सकते हैं. काफ़ी सारे students mass communication करके आते हैं. So if someone has done mass comm in their graduation, they can still go for law and they can get into something like media related law. फैशन लॉ, किसी ने निफ्ट, एनआईडी कहीं से डिजाइनिंग कोर्सेज करे हैं, उसके बाद वो लीगल इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं, वो उसके साथ भी कंबाइन कर सकते हैं. सो लॉ इज वन ऑफ दोज ऑप्शंस. किसी के साथ भी कंबाइन कर दो, बहुत अच्छे से अपना करियर आप आगे लेके जा सकते हो. सो यस,
इवन लॉ इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. हम लोग अगर टेक लाइन में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, आज के टाइम पे देयर आर सर्टेन करियर ऑप्शंस रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी जो बहुत आगे तक चलने वाले. फॉर एग्जांपल डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, ये सारे जो ऑप्शंस है ना, ये हम लोग टेक के साथ आगे कंबाइन कर सकते हैं. एंड डेटा साइंस फॉर मी इज गोल्ड राइट नाउ, क्योंकि डेटा में, करोड़ों के डेटा में वो जो काम का डेटा निकालना है ना, ये जो कला है आजकल बहुत सारी कंपनीज मांग रही है. सो दिस इज वन थिंग दैट इज इन डिमांड राइट नाउ एंड द डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर. यू कैन ऑल्सो लुक एट थिंग्स लाइक इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम लोग पब्लिक पॉलिसी में जा सकते हैं. बहुत कम लोग जाते हैं पब्लिक पॉलिसी की तरफ, बट इट्स एन अमेजिंग करियर ऑप्शन. Many students think about giving the government examinations. Yes, you should go for that as well. आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा है इसमें भी. And yes, obviously you'll get an opportunity to serve the country as well, which is not bad. So there are n number of career options which we can look at. But हाँ, तरीका क्या होना चाहिए? If you're doing your graduation के टाइम पे ना बहुत सारी इंटर्नशिप्स करो, और इंटर्नशिप्स करो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. कोई अगर मैनेजमेंट के साइड पे जाना चाहता है, डू सम इंटर्नशिप्स रिलेटेड टू मार्केटिंग, डू सम इंटर्नशिप्स रिलेटेड टू फाइनेंस, डू सम इंटर्नशिप्स रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल, डू सम थिंग्स और सम सर्टिफिकेशन कोर्सेज which would give you knowledge about international trade, maybe international relations, maybe fintech. इन सारी चीज़ों में ना थोड़ी सी नॉलेज हमेशा लेनी चाहिए along with your graduation. अगर ये नॉलेज ले ली तो मास्टर्स में क्या करना है ये डिसाइड करना आसान हो जाएगा. कहीं ये ना हो जाए ग्रेजुएशन खत्म करती है, मास्टर्स तो कर ली, और मास्टर्स करने के बाद रियलाइज कर रहे हैं यार ये वाली दुनिया मेरे लिए बनी नहीं है. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस बिफोर गोइंग फॉर योर मास्टर्स, एंड दैट एक्सपीरियंस कैन बी थ्रू इंटर्नशिप्स, दैट एक्सपीरियंस कैन बी थ्रू द प्लेसमेंट्स दैट यू आर गेटिंग इन द कॉलेज. सो इट्स टोटली अप टू यू आपको किस तरीके से एक्सपीरियंस लेना है. काफ़ी सारे बच्चे इंटर्नशिप्स में ही बहुत सारी वेराइटीज अपने रिज्यूमे में ले आते हैं, और उस वैरायटी की मदद से ना वो आगे एक्सप्लोर कर लेते कि यार यहाँ जाना है या वहाँ जाना है. सो दैट इज हाउ आई वुड एक्चुअली वांट माय स्टूडेंट्स टू गो अहेड. This is one of the, wonderful example you have quoted over here, or you have shown the path. अगर हम ये जान लेते हैं या हम experiment कर लेते हैं initial stage पे, then it becomes easier for us to understand which way to go, because we have many roads to go. Exactly. Now, when we are talking about MBA, how to prepare for it, what type of studies are to be done, as well as what type of competitive exams are required to be given, because जब किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहना, MBA मतलब हम यही सोचते हैं IIT IIMs के अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास एवेन्यूज अवेलेबल होते हैं. काइंडली थ्रो सम लाइट. So yes, when we talk about getting into an MBA college or a top B school in India, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारा एप्टीट्यूड. तो कोई भी एंट्रेंस पकड़ लो, हर एंट्रेंस में ना एप्टीट्यूड ज़रूर पूछा जाएगा. सो व्हेन आई से एप्टीट्यूड वुड इंक्लूड मैथ्स, बट मैथमेटिक्स टिल क्लास 10th. यस, मैथ्स सुन के ना काफ़ी सारे बच्चों की हवा निकल जाती है. अरे सर मैथ्स तो हमने 10th में ही छोड़ दिया था. अरे सर मैथ्स से तो सख्त नफरत है, मैं 10th के बोर्ड्स में भी बड़े मुश्किल से पास हुआ था. इट्स अ वेरी सिंपल एप्टीट्यूड टेस्ट. ये आपके स्किल्स को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी नॉलेज को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं. सो यस, क्लास 10 तक की मैथ्स आपके हर एंट्रेंस में आती है. Second is English. Now one needs to understand this very clearly कि यार English ना सीखी नहीं जा सकती. English ना हम लोग with experience हमारे दिमाग में आती है और हमारी vocabulary सुधरती है. So one should read a lot of books. So even if you are in your first year, maybe in your second year, maybe in your third year, maybe in your final year, आप जिस भी year में हो, and if you haven't started reading the books till now, start reading a lot of books. Maybe some self-help books. You can actually buy a book जो हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे लेकिन अभी तक स्टूडेंट्स को काम आती है, which is Word Power Made Easy. It's an amazing book to improve your vocabulary. Start reading editorial pages. घर पे न्यूज़पेपर आता है. ज़्यादातर बच्चों को न्यूज़पेपर से नफरत है. वो आधे से आधा पेरेंट्स तो न्यूज़पेपर बस नाम के लिए मंगवा रहे क्योंकि उनको पता है कि यार शायद कभी हमारा बच्चा पढ़ लेगा. But as a counselor, one very generic suggestion for you guys, start going through the newspapers.
मे बी हिंदू, अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट विद। वहां से नॉलेज भी मिलेगी, वहां से तुम्हारी वोकैबुलरी भी सुधरेगी। थर्ड, लॉजिकल रीजनिंग। देखो लॉजिकल रीजनिंग में ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जहां पे हमें ऑन द स्पॉट अपना दिमाग लगाना होता है। मे बी समथिंग लाइक direction based questions like I went 10 meters north, 20 meters south, 30 meters southwest. What is the total distance I traveled? And in comparison to my original position, what is my current position? ऐसे questions आ सकते हैं। Blood relations. My mother's, father's, sister's, daughter's husband. मेरे क्या लगे? अब यहाँ पे ना सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारे पास आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो एमसीक्यूज में वी नीड टू बी वेरी एक्टिव एंड हमें ना लॉजिकली सोचना है। ये एंट्रेंसेस आपसे वर्किंग नहीं मांगेंगे कि आप पहले 2 पेजेस की वर्किंग दिखाओ उसके बाद आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे द मेजर थिंग दैट वी गाइस नीड टू वर्क ऑन इज स्पीड एंड शॉर्टकट्स। सो बॉस इसके लिए वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे होएगा? वी कैन गिव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट्स। तो जितने मॉक्स हम दे सकते हैं इट वुड बी हेल्पफुल फॉर अस। फोर्थ, जनरल नॉलेज, जीके। देखो जीके इज वन थिंग जो हम तभी अपनी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे अगर हम न्यूज देखें, अगर हम न्यूज़पेपर पढ़े। ये 2 चीजें करना शुरू कर दो। अगर न्यूज देखनी शुरू कर दी तो हमें पता रहेगा दुनिया में क्या चल रहा है, और अगर वो पता है तो हमारा जनरल नॉलेज इज सॉर्टेड। ये 4 चीजें हर पेपर में आएगी। मैथ्स के लिए वी कैन लुक एट बुक्स लाइक RS अग्रवाल, वी कैन लुक एट बुक्स लाइक M टायरा। ये दोनों कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हमें प्रिपेयर करती है। फॉर इंग्लिश वंस अगेन वी कैन लुक एट रेन एंड मार्टिन, वी कैन लुक एट वर्ड पावर मेड इजी। दोनों बुक्स बहुत अच्छी है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी आप लोग RS अग्रवाल यूज कर सकते हो। काफी सारे पेपर्स में एक पार्ट और आता है विच इज डेटा इंटरप्रिटेशन, DI जिसको कहते हैं हम लोग। डेटा इंटरप्रिटेशन में इट्स मोर अबाउट स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उसके लिए भी हमारी मैथ्स की तरफ इंक्लिनेशन थोड़ी सी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आई वांट यू गाइस टू बी एन एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, बट यस यू शुड एंजॉय नंबर्स। ऐसा ना हो कि नंबर्स देख के मन करता है कि यार बस पढ़ाई बंद कर दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड ट्राई टू एंजॉय नंबर्स नाउ। जीके एज आई हैव टोल्ड यू, यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर्स। अच्छा, इसके बाद ना काफी सारे कॉलेजेस हमसे लेते हैं पर्सनल इंटरव्यूज। पर्सनल इंटरव्यू में ना कुछ चीजें देखी जाती है जिसमें सबसे पहले होता है पर्सनालिटी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ, तो आप उसका जवाब कितना कॉन्फिडेंटली दे रहे हो। यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू आर टेलिंग। सेकेंड, यू शुड ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन योर कॉलेज। कुछ ऐसी चीजें करो जिससे कि हमारा CV स्ट्रांग हो जाए, राइट? सो वी माइट एक्चुअली डू सम इंटर्नशिप्स, जैसे मैंने बोला। इंटर्नशिप्स के अलावा if you want to go towards technology, try creating a tech project maybe. Try creating those things जिससे कि colleges को भी लगे कि हाँ, this student really wants to do this course. So for example, if you have made up your mind that you want to get into marketing and you want to do an MBA in marketing, so you should have some kind of experience in your resume that shows the interviewer कि हाँ, he has planned his journey in a very logical manner. ये ऐसा नहीं है कि बस ग्रेजुएशन खत्म करी क्योंकि एक मास्टर्स की डिग्री लेनी है, मार्केटिंग बहुत अच्छा है तो चलो कर लेते हैं। यू नीड टू गिव देम द एग्जैक्ट रीजन ऑन व्हाई यू आर डूइंग दैट कोर्स। सो तुम्हारा जो इंटरव्यू होता है ना, इसी के आसपास रिवॉल्व करेगा। एंड हाँ, कॉन्वर्सेशन कैसे क्रिएट करनी है, कॉन्वर्सेशन को कैसे कंटिन्यू करना है, ये भी आप लोगों को आना चाहिए। सो इफ यू हैव दीज थिंग्स इन योर किटी, क्रैकिंग द एग्जामिनेशन वोंट बी वेरी टफ। हाँ, एग्जाम्स हम लोग बहुत सारे दे सकते हैं। वन मेजर एग्जामिनेशन इज कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो कैट के थ्रू ना हम मेजरली जो हमारे टॉप 20 स्कूल्स हैं हम सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टॉप 20 स्कूल्स इंक्लूड्स IIMs, मे बी NMDI गुड़गांव, मे बी FMS, मे बी IMT गाजियाबाद। ये जो हमारे टॉप 20 स्कूल्स, इवन द IITs, इन सारे जगहों पे जो हमारे एंट्रेंसेस ये लोग जो मार्क्स लेते हैं वो हमारे कैट का स्कोर लेते हैं। उसके बाद इन कॉलेजेस में इंटरव्यू होता है, फिर आप क्रैक करते हो। बट अपार्ट फ्रॉम कैट बहुत सारे अलग अलग एंट्रेंसेस है जो हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ZAT X80, which is for Xavier's. We can go for Symbiosis. Symbiosis has its own entrance, which is known as SNAP. We can go for Narsi Munji. Narsi Munji is a wonderful B school in Mumbai. बहुत अच्छा कॉलेज है। उसके लिए कौन सा एंट्रेंस देना है? NMAT. हम लोग
साउथ की तरफ जा सकते हैं. वी कैन लुक एट कॉलेजेस लाइक क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इन बैंगलोर. वंस अगेन इट्स अ वेरी डिसेंट बी स्कूल, जरूर देखना चाहिए. वी कैन गो फॉर यूनिवर्सिटीज लाइक फ्लेम्स. सो फ्लेम्स इज अ लिबरल आर्ट्स कॉलेज इन पुणे. बहुत ज्यादा बच्चों को नहीं पता होता है इसके बारे में. यू कैन लुक एट कॉलेजेस लाइक मे बी बिट्स पिलानी, वहां पे भी होता है. यू कैन लुक एट कॉलेजेस लाइक एसपी जैन, वहां पर भी होता है. सो वी हैव अ वेरी गुड नंबर ऑफ बी स्कूल्स जो हम एक्चुअल में टारगेट कर सकते हैं. सो इफ आई एक्चुअली थिंक अबाउट कि हमें कितने पेपर्स देने चाहिए स्पेसिफिकली फॉर बी स्कूल्स, एटलीस्ट गिव 10 to 12 पेपर्स. उन 10 से 12 पेपर्स में जो टॉप कॉलेज निकले उस तरफ हम लोग चले जाएंगे. Now we have two sets of students, one who are aware of what they want to do and the another one falls in the category चलो देखते हैं क्या मिलेगा या let's try it out, यहाँ नहीं हुआ तो चलो let's go for the MBA. So how things are difficult for those two sets of the students and what they are required to do? Right. So see, अगर किसी ने प्लान आउट किया हुआ है, if someone has already planned कि आगे क्या करना है, that student would have a very logical step of going ahead. उसको पता है कि मैं ये वाला स्टेप इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अल्टीमेटली यहाँ तक पहुंचना है. बट इफ देयर इज अ स्टूडेंट जिसने अभी तक ये सारी चीजें नहीं समझी है, जो सिर्फ MBA फ्लो के साथ कर रहा है या जो एक मास्टर्स का प्रोग्राम से फ्लो के साथ कर रहा है, उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए you should at least go for a few months of work experience so that you are able to understand कि इस दुनिया में आगे की लाइफ होने कैसे वाली है. देखो ऑन पेपर्स ना वी कैन टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स कि अगर आप मार्केटिंग में जाते हो तो ये चीज़ें करनी होगी, या अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज में जाते हो तो ये करना होगा, या अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हो तो तुम्हारी लाइफ ऐसी होगी, या अगर तुम इंटरनेशनल रिलेशन में जाते हो या फाइनेंस में जाते हो तो आगे की लाइफ ऐसी होगी. लेकिन देखो ऑन पेपर समझना इज वन थिंग and doing everything practically is another thing. I know many students who have actually realized after doing their MBA that they were not really fit for that line. तो यार उस चीज से बचने के लिए it's always better कि हम लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस पहले ले. सो उसका सबसे अच्छा तरीका है कॉलेज में घुसते ही इंटर्नशिप्स. अगर कॉलेज घुसे हुए टाइम हो गया है, अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड. यू कैन स्टिल गो फॉर इंटर्नशिप्स. यू कैन स्टिल लुक आउट फॉर कंपनीज जो अलग अलग डोमेन्स में तुम्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस देगी. एक और बहुत अच्छा तरीका है, लुक एट द टॉप पर्सनालिटीज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. अगर ह्यूमन रिसोर्सेज देख रहे हो तो HR की टॉप पर्सनालिटीज पर कौन है. लुक एट द प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन. कोई भी अच्छी कंपनी देखो, उसके HR को ढूंढो, उसकी HR की प्रोफाइल देखो लिंक्डइन में, उसके काम देखो कि वो क्या क्या कर रहा है वहां पे. तो लिंक्डइन पे ज्यादातर जितने भी पर्सनालिटीज है, जितने भी लोग हैं, वो अपना काम भी बताते कि दिस इज व्हाट दे आर डूइंग इन द कंपनी. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग एंड देन अकॉर्डिंगली ट्राई टू इमेजिन एज वेल कि हाँ, एम आई रियली फिट फॉर दिस फील्ड और नॉट. फाइनेंस में भी देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स वन कैन गेट इनटू. यू नीड टू नो कि यार मुझे किस में जाना है. आर यू समवन हु इज अ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट? आर यू समवन हु वांट्स टू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? Are you someone who wants to combine technology and finance together and get into fintech? Are you someone जो शायद फाइनेंस के बाद काफी सारे बच्चे CA के बारे में सोचते हैं? Are you really aiming for something like CA? Do you want to get into something like private equity? Do you want to become a portfolio manager? तो फाइनेंस में भी अपने आप में बहुत सारी चीजें. सिमिलरली मार्केटिंग में वन कैन गेट इनटू सेल्स, वन कैन गेट इनटू ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, वन कैन गेट इनटू मार्केट रिसर्च, one can get into the strategizing of the marketing, one can get into digital marketing. पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग में ही तुम्हारा मन कर जाए. इवन इफ यू वांट टू गेट इनटू डिजाइन, फैशन करने का मन है तो कौन सा फैशन करना है? क्या तुम प्रोडक्ट डिजाइन में जाना चाहते हो? क्या तुम फैशन मैनेजमेंट में जाना चाहते हो? क्या तुम फैशन कम्युनिकेशन में जाना चाहते हो? इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन यू. एवरी फील्ड हैज सब कैटेगरीज and to decide which subcategory you want to get into, it is better that you take some kind of experience. अगर path defined भी है और तुमने experience नहीं किया, for example there are students who say कि sir ultimately तो यही करना है, but they haven't really experienced anything. कहीं बीच में ये ना हो जाए जो ultimate path सोचा हुआ था वो बहुत मजेदार नहीं लगे. So even if you have planned on a path, you should still take some kind of experience and you should explore different fields. जितना एक्सप्लोर करोगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए, एंड अकॉर्डिंगली फिर आगे जाके एंट्रेंसेस दो.
डेफिनेटली. सो यू हैव क्लियर्ड आउट कि अगर हम पहले से ही सोच लेते हैं कि हमने उस मंजिल तक पहुंचना है, तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है, बिकॉज वी कॉन्स्टेंटली इन अ लूप वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग विच वी आर ट्राइंग टू अचीव. सो वन थिंग दैट आई हैव एक्चुअली सीन अमंग्स द स्टूडेंट्स, देखो अगर अपन लोगों को एक लॉजिकल स्टेप पता होगा ना कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग नेक्स्ट एंड दिस इज द रीजन आई एम डूइंग दिस, वील डू इट हैप्पीली. नाउ द अदर कैटेगरी इज बोल दिया गया, माई पेरेंट्स टोल्ड मी दैट दिस इज अ गुड कॉलेज सो एम फॉर दिस. That's not the logic. So if you have the logical reason of doing that thing, you'll do it more happily. But if you're just doing it for the sake of doing it, not very sure about it. what I want to do and why I want to do that thing is the most important thing. Dear friends, thank you for watching us, and we believe that you have earned maximum through this particular session, and we promise to bring for you more and more. Keep watching us. Thank you.